Hey guys, namaste. Welcome to another video. Last video did so good. I'm so happy about it. Last video ज़्यादा boost नहीं हुआ जल्दी starting में it was very slow. Eventually it just boosted up and I'm so happy. Uh, really happy. In the evening I was just studying and I just saw a notification from somebody said कि randomly I saw your video on YouTube, so it just made me happy. Yeah. How to train yourself to say no to people? Why? Let's just go to the fundamental of saying no. The fundamental is the it for me and for people like me, could be different for everyone, but people like me, it's the fact that we are scared to be alone. We are scared to be alone. We feel like if we say no, they're gonna reject us, the abandonment, right? So this is the core. When in life, when you're very skeptical about things that ये मुझसे क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है, why am I not being able to do it? Just try to see the root of it, the base of things, and to go to the root, you really have to introspect. We'll make a video about introspection. I would love to because it's my favorite thing to do in life. As a psych major, I love to introspect, and that's how I learn things, right? After mistakes. But again, coming back to this, it's the abandonment issue, right? So now when you are scared of being abandoned, there's a lack of security within ourselves. That's why we are very scared to be abandoned, and there are multiple past traumas that also plays role into this. When I realized what do I worth and what my time does worth, I keep this little clock with me. It's such a cute small clock on my table, and every second when passes it reminds me of something. It reminds me that ये second जा रहा है, ये second जा रहा है, ये गया वापस नहीं आएगा. You need to have something very concrete, very physical in your life, that reminds you continuously of the importance of time. And once you thank time, you realize that you will use it wisely. You won't get it more, you will use it wisely. So whatsoever time that you have, you will use it wisely, right? So if you disrespect time, means you are going out and doing things that you are not supposed to do in this moment. We are still doing it, right? So we have two three issues here with saying no. First is कि यार मुझे डर लगता है द पर्सन विल रिजेक्ट मी. सेकंड है कि मैं अपनी टाइम को डिसरिस्पेक्ट करती हूँ या करता हूँ या करते हैं, ठीक है. एंड द फोर्थ वन इज कि मुझे भी मज़ा लेना है, ठीक है, मुझे भी जाना है बाहर, मुझे भी इंजॉय करना है. अब तीनों को हम लोग मिक्सअप करते हैं, तीनों को हम सॉल्व करते हैं. So first is abandoning. So you have to find solitude within yourself. There should be more of feeling solitudeness within your alone self and not feel lonely. So वो एक aspect अगर दूर होता है तो yes, we will be able to say no to people. Second thing है time. Time को कैसे रिस्पेक्ट करोगे? वंस यू रियलाइज एंड वंस यू थैंक टाइम फॉर डूइंग थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एग्जाम्स के एक महीने पहले दो टॉपिक की नोट्स बनाई है, उसमें से एक टॉपिक आ गया, ठीक है, वो नोट्स मैंने बनाते टाइम बहुत मेहनत करी थी और उसको दो बार देख भी लिया था या तो एक बार देख भी लिया था, ठीक है, एग्जाम के पहले. और नोट्स इतनी अच्छी थी, उसमें टाइम दे के मैंने वो नोट्स बनाई थी कि एग्जाम में, व्हेन आई रोट इट परफेक्टली, बहुत अच्छे से मैंने लिखा है, ठीक है. देन आई थैंक माई टाइम. टाइम इज नॉट फिजिकल, बट उसको फिजिकल बनाओ, उसको कॉन्क्रीट बनाना पड़ेगा तुमको. सिंपल चीज़ है, ठीक है, तभी जाके हम उसकी वैल्यू कर सकते हैं, ठीक है. फॉर मी इट हाउ इट वर्क्स, राइट. सो द थर्ड पॉइंट वॉज कि आई एम वेरी स्कैर्ड कि मुझे भी घूमने जाना है, आई ऑल्सो वांट टू गो आउट, मुझे भी इंजॉय करना है, बट हाउ विल आई ऑल्सो स्टडी एंड डू इन दिस एंड दैट. आई लव गूगल कैलेंडर. इट मेक्स मी सो बिजी. आई एम वर्किंग एवरी टाइम people see me. It's because of my calendar. Whatever that I have written in my calendar, it could be any task, just as simple as कि एक आंटी को कॉल करना है कि प्लीज़ आप घर पे आके झाड़ू पोछा कर. It's that simple, ठीक है. You have to write it in the calendar, ठीक है. टिफिन मंगवाना है, just write in the calendar. मैं इतनी चीज़ें भी लिख देती हूँ. So once it's written, वो मेरे हाथ से गया. फ़ोन 24 घंटे हाथ में होता है, ठीक है, ये तो बहाना ही नहीं है. 24 घंटे फ़ोन हाथ में होता है. कभी ना कभी नोटिफिकेशन आया, तुमने देखा, तुमको ट्रिगर हुआ, तुम अभी करोगे, ऐसा है. और जब तक टास्क होता नहीं है ना, वो तुमको बार बार याद भी दिलाएगा कि ये तुम्हारा हुआ नहीं. बाकी सारी डिस्ट्रैक्शंस तो हट गई हैं. इंस्टाग्राम है नहीं मेरे पास, यूट्यूब है पर उसकी नोटिफिकेशन वगैरह ऑफ है, तो मतलब अब क्या डिस्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है. But that's how you are grateful for the time, right? And the other part is कि you have a fixed schedule कि भाई इतने इतने बजे that I will go out, I will do this and that, and उसके अलावा I won't do it, ठीक है. अभी बात आती है when it comes to eating food and stuff, ठीक है. सो अभी उसमें क्या है पता है, what happened with me is कि लाइक कॉलेज में फ्रेंड्स रहते हैं ना, तो आई जस्ट डू दिस कि आई जस्ट गो आउट, ज़्यादा खा लिया, ठीक है, कुछ ज़्यादा फेवरेट लगा तो ज़्यादा खा लिया, एक प्लेट दो प्लेट खा लिया, या तो वो एक ही चीज़ इतनी महंगी मंगवाई, ठीक है, अब वो बहुत हो जाता था. ज़रूरत से ज़्यादा खा लो, या तो जो नहीं खाना चाहिए वो खा लो, अनहेल्दी खा रहे हैं. अब उस चीज़ में रो कैसे लगाओगे कि तुम्हारे पास एक हेल्दी ऑप्शन ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है. अब मैं क्या करती हूँ, अब
कि समटाइम्स आई डू कि मेरे साथ केला या फिर ब्रेड बटर सब करके गर्म करके आई हैव दिस टिफिन इन माई बैग. अब जब खाना पड़ा होगा, ठीक है, बैग में, तो तुम बाहर का नहीं खाओगे. ठीक है, फॉर मी इट वर्क्स, क्योंकि आई रियली रिस्पेक्ट कि कोई भी फूड हो, चाहे मुझे वो टेस्टी ना भी लगता हो, ऐसा बहुत बार हुआ है कि इट्स नॉट टेस्टी, आई ईट इट एंड आई फिनिश इट. सो मेरा कोर ऐसा बैठा हुआ है कि आई वुड फिनिश इट, राइट. सो फॉर द पीपल who respect food would also not waste the healthy option within them. So this is one of the solution that works for me, right? And then when somebody asks कि ये खाना है, तो you would say नहीं यार ये मेरे पास है, मैं ये खा लूँ पहले, या तो फिर ये मैं अभी खा लेती हूँ, शाम को मैं ये खाऊंगी. तो शाम को आप बाहर का खाना नहीं खाओगे, एटलीस्ट एक टाइम नहीं खाओगे. तो ऐसे धीरे धीरे आदत छूटी. ऐसा है, नहीं मुझे बाहर नहीं जाना, मेरा मन नहीं है आज, नहीं मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना. बहुत बुरा लगता है बोलते हुए, आई हेट इट. But when you have a priority set, when you have this I will do it set, that's when you would not ruin the other parts. कि ये है आपका सर्कल फ्रेंड्स का, ठीक है. अब इसमें है बहुत सारे वियर्ड लोग, ठीक है, जिनको बाहर जाना है, खाना खाना है, घूमना है, ये करना है, वो करना है, पापा के पैसे हैं, सिंपल. यू आर द वन might earning for yourself and you also have papa ke paise, who knows, right? But you deep down know that these things are not something that would be beneficial for you. But तुम्हारा वाई क्लियर नहीं है, तुम्हारा विल क्लियर नहीं है. जब वहाँ प्रॉब्लम होती है, जब वहाँ फंडामेंटल में प्रॉब्लम होती है, जब अबैंडनमेंट इश्यूज होते हैं, जब रिजेक्शन से डर लगता है, जब ना बोलने पे उनके रिएक्शन से डर लगता है, जो तुम्हें हर्ट कर सकता है उससे डर लगता है, तो ऑल यू आर मेकिंग एवरीथिंग अबाउट यू. ऐसी बात है, ठीक है. तो इसीलिए ना बोलने से लगता है डर, सिंपल. ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो ना बोलने में अभी भी मैं सीखती हूँ, लेकिन एटलीस्ट छोटी छोटी चीज़ों में ना बोलना सीख लिया है. क्योंकि जब से तुम अपनी टाइम को रिस्पेक्ट करने लग जाते हो, जब से तुम समझने लग जाते हो कि टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तब से थोड़ा इज्जत से पेश आना शुरू कर देते हो. और रिग्रेट भी कभी कभी फील होता है कि यार शिट, बट वो चीज़ भी तुमको हावी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ तुम सीखे हो, तो उसको भी तुमको ख़राब नहीं बोलना है कि जो भी हुआ उस वो बहुत ख़राब था, ऐसा नहीं करना है, ठीक है. एंड आई मेड दिस वीडियो इन हिंदी बिकॉज आई रियलाइज्ड that I really want Indian audiences to be here, Indian or the people who speak Hindi type of audiences here on my channel. And I hope you like this video, and I just hope that you resolve the abandonment issue ka part and the respecting the time ka part. So yeah, I'll see you guys in the next one.